ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਮਾਈਂਡ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। +1 ਦਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਮੈਥ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 1.1 ਐਂਡ 1.2 ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਵੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਮ ਹੋ ਸਕੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 1.3 ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੋ ਟੈਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਉਸ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਮ ਜੋ ਆਪਣਾ ਫਸਟ 1.3 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। A set A is said to be a subset। देखो आप इतने डेफिनेशन देखनी है सबसेट की डेफिनेशन की होंगी है a set A is said to be a subset of set B if every element of A is also element of B। तो ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਟ A ਆ ਐਂਡ ਸੈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ ਉਹ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 1 2 3 ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਸੈਟ B ਆ ਐਂਡ B ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਉਹ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 1 5 2 7 3 एंड 9। मेरे को दो सैट आ सैट ए एंड सैट बी एंड इत्थे आपां देखांगे कि जिहड़ा मेरे को सैट ए आ उहदे जिहड़े एलीमेंट आ 1 2 3 वो सारे दे सारे एलीमेंट मेरे को बी दे विच प्रेजेंट आ 1 प्रेजेंट आ 2 प्रेजेंट आ एंड 3 प्रेजेंट आ। जेकर किसी सैट दे सारे एलीमेंट किसी दूजे सैट दे विच प्रेजेंट होण तां आपां कह सकदे हां कि जिहड़ा सैट ए आ वो मेरे को सबसैट आ बी दा। ठीक है, जिहड़ा सिंबल आपां इत्थे रिप्रजेंट करना वो तुसीं ध्यान नाल देख सकते हो। उहनूं आपां एक सी दी तरह रिप्रजेंट करना हुंदा ए पा के उस तो बाद सी ये अपने कोले सबसैट दा सिंबल हुंदा। इहदा मतलब ये हुंदा कि जिहड़े ए दे अंदर एलीमेंट प्रेजेंट आ सारे दे सारे एलीमेंट भी बी दे अंदर भी प्रेजेंट आ, मतलब ए इज़ अ सबसैट ऑफ बी। तां इहनूं ध्यान नाल देखो जिहड़ा आपां साइन इस तो पहला कीता सी एक्सरसाइज 1.1 दे विच ओह आपां साइन कीता सी इस टाइप दा। इहदा मतलब हुंदा सी बिलोंग्स टू, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਪੜਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਸਾਈਨ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਬਸੈਟ ਦਾ ਸਾਈਨ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸਬਸੈਟ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਾਈਨ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ सबसेट सी ए एंड सबसेट सी मेरे कोले B। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ A ਸੀ ਐਂਡ A ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਸੀ 1 2 ਐਂਡ 3 ਐਂਡ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸੈਟ B ਸੀ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 1 5 2 7 3 ਐਂਡ 9। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਂ ਲਿਖੂੰਗਾ 1 2 ਐਂਡ 3, देखो जे तो इन्हूं मैं सैट बना के लिखूंगा मतलब कि ਜਿਹੜੀਆਂ ब्रेसिस आ इहदे अंदर लिखूंगा, ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा तो मैं इत्थे जिहड़ा साइन पाऊंगा वो सबसेट का साइन पाऊंगा। ठीक है, तो इसदा मतलब की हुंदा कि जिहड़ा मेरा पूरे का पूरा सैट आ, पूरे का पूरा जिहड़ा मेरे कोले सैट आ वो जिहड़ा मेरे कोले राइट हैंड साइड के उपर सैट पिया होया उहदे अंदर प्रेजेंट आ। तो जे मैं इत्थे पूरा सैट लिखूंगा 1 2 3 जिहड़े एलीमेंट आ एक सैट आ, फुल सैट आ क्योंकि इहदे अराउंड मैं ब्रेसिस पाईआं होईआं। जे मैं ब्रेसिस ना पाउंदा मान लो मैं इत्थे लिख दिंदा 1 ਜਾਂ 2 लिख दिंदा 1 2 ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਦਾ ਸਾਈਨ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਅਰਾਊਂਡ ਬ੍ਰੇਸਸ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਜੇ ਬ੍ਰੇਸਸ ਪਾਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੈੱਟ, ਜੇਕਰ ਬ੍ਰੇਸਸ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ, ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਤਾਂ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਪਾਵਾਂਗੇ ਐਂਡ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੈੱਟ ਆ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਸਬਸੈਟ ਦਾ ਸਾਈਨ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ कि दो साइन अपने कोले दोनों नूं आपां ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं जो आपां सम नूं सॉल्व करांगे। तो देखो अगे डेफिनेशन में भी लिखा होया कि आपां ए बिलोंग जिहड़ा ए आ ए इज़ अ सबसैट ऑफ बी। तो ए सबसैट ऑफ बी कदों हुंदा क्योंकि ए जिहड़ा एलीमेंट आ ए दे अंदर कोई भी एलीमेंट जिहड़ा प्रेजेंट आ जेकर वो ए नूं बिलोंग करदा तो ए आ वो बी नूं भी बिलोंग करना चाहिदा वा। तो फिर अपने कोले जिहड़ा ए हुंदा वो सबसैट हुंदा, मतलब जिन्ने एलीमेंट अपने कोले ए दे विच प्रेजेंट आ जिवें इत्थे 1 सी 2 सी 3 सी वो सारे दे सारे एलीमेंट बी दे अंदर भी प्रेजेंट होने चाहिए आ। ठीक है, 1 2 एंड 3। जेकर कोई भी एक एलीमेंट ना प्रेजेंट हो जिवें मान लो अपने को इत्थे ए आ, ए अपने को एक सैट आ एंड उहदे अंदर एलीमेंट है 1 2 एंड 3 एंड बी अपने को एक सैट आ उहदे अंदर जिहड़े एलीमेंट वो प्रेजेंट है 1 5 7 2। हुण देखो इत्थे अपने को ए दे विच 1 प्रेजेंट आ, बी विच भी 1 प्रेजेंट आ
ए दे विच जिहड़ा अपने कोले 2 प्रेजेंट आ, बी दे विच भी 2 प्रेजेंट आ, बट ए दे विच 3 प्रेजेंट आ जिहड़ा बी दे विच है नहींगा। ਇਹਦਾ मतलब कि जिहड़ा मेरे कोले ए आ, ए इज़ नॉट अ सबसैट ऑफ बी, ए आ जिहड़ा मेरे कोले वो बी दा सबसैट नहींगा। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਮ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਕ ਅ ਕਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਾय ਫਿਲਿੰਗ ਸਬਸੈਟ ਔਰ ਨਾਟ ਅ ਸਬਸੈਟ ਇਨ ਦੀ ਬਲੈਂਕ ਸਪੇਸ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬਲੈਂਕ ਸਪੇਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਆ ਕਿ ਨਾਟ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਰਸਟ ਸਮ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 2 3 ਐਂਡ 4 एंड सैकेंड सैट अपने को 1 2 3 4 एंड 5। हम देखो सारे दे सारे एलीमेंट मैच करो। इतने 2 प्रेजेंट आ एंड इस साइड के उपर भी 2 प्रेजेंट आ। सिमिलरली इतने अपने को 3 प्रेजेंट आ एंड इस सैट में भी 3 प्रेजेंट आ। इतने अपने को 4 प्रेजेंट आ, इस साइड से भी 4 प्रेजेंट आ। इसका मतलब की आ कि 2 3 4 इज द सैट ऑफ 1 2 3 4 5। इसका मतलब कि फिर अपने को साइन आऊगा, सबसैट का साइन आऊगा। ठीक है। सिमिलरली आप नैक्सट भी चैक करते हैं। देखो इतने अपने को ए प्रेजेंट आ बट अपने को जो इस साइड के उपर आ कितने भी ए प्रेजेंट नहीं। यदा मतलब की है कि अपने को सबसैट नहीं गा तो इतने नॉट आ सबसैट का साइन आऊगा। नैक्सट देखो अगे एक्स इज़ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। तो स्कूल की 11th क्लास का स्टूडेंट आ कोई एक्स। ठीक है। एक्स मतलब कोई भी स्टूडेंट, स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास, स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास। तो देखो अगे उन्हें की दिता दूसरा सैट अपने को एक्स इज़ अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल एंड जो सैकेंड सबसैट आ वो जो अपने को एक्स आ वो की स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। हुण इत्थे ध्यान देने वाली गल आ। देखो जेकर आप स्टूडेंट देखिए 9th क्लास का तो 9th क्लास का स्टूडेंट थोड़े स्कूल का स्टूडेंट भी होगा। ठीक है। तो स्टूडेंट ऑफ स्कूल का मतलब की है कि जिन्ने भी स्कूल में टोटल स्टूडेंट आ, मान लो अपने को 500 स्टूडेंट आ एंड स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास। इसका मतलब कि जो 11th क्लास का स्टूडेंट होगा कोई वो टोटल अपने को जो 500 स्टूडेंट आ उन्हों का ही पार्ट होगा। तो इसका मतलब इतने अपने को साइन क्या आऊगा, बिलोंग टू का साइन आऊगा। नैक्सट अपने को देखो एक्स इज़ अ सर्कल इन अ प्लेन एरिया। एक्स अपने को कोई सर्कल आ। हम प्लेन एरिया जो होंगे वो अंदर सर्कल कोई भी हो सकता। ठीक है। वो अंदर जो अपने को लैट कर लो सर्कल कोई छोटा हो सकता, कोई उस तो बाद वड्डा हो सकता। ठीक है। उस तो वड्डा कोई सर्कल हो सकता, कोई भी सर्कल हो सकता। ठीक है। उन्हें कोई रेडियस की गल नहीं की। एक्स इज़ अ सर्कल इन अ प्लेन, तो प्लेन के कोई अपने को सर्कल आ। दूसरा उन्हें क्या एक्स इज़ अ सर्कल इन अ सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। हम सैकेंड टाइम उन्हें कहता कि जी मेरे को सर्कल होगा वह जो रेडियस होगा 1 यूनिट होगा। इसका मतलब कि रेडियस अपने को 1 यूनिट ही होना चाहिए वा। बट दूसरी साइड आप देखिए तो ये कोई रेडियस मैंशन नहीं किया। इसका मतलब आप जिन्ना मर्जी रेडियस ले लीए, छोटा भी हो सकता या फिर कोई बाला वड्डा भी हो सकता। तो डिपेंड करता वा कि जो आप उत्थे सर्कल ड्रॉ करांगे। बट इत्थे कोई कंडीशन नहीं दी हुई कि जो आप इसका रेडियस वो 1 ही लेना। तो बट इत्थे अपने को रेडियस 1 आ। इट मीनस कि जे अपने को कोई वड्डा सर्कल होगा वो इस दे विच नहीं आएगा, अपने को दूसरी साइड के उपर नहीं आएगा। तो इसका मतलब कि जो अपने को साइन किहड़ा होगा फिर नॉट बिलोंग्स टू द साइन होगा, क्योंकि अपने को इत्थे सर्कल सारे के सारे वो होंगे जिन्हों का रेडियस 1 होगा। बट इस साइड के उपर अपने को सर्कल वो होंगे जिन्हों का रेडियस मैंशन ही नहीं किया गया। वो 1 भी हो सकता, 1 तो ज़्यादा भी हो सकता, घट भी हो सकता। तो सारे के सारे सर्कल इनू बिलोंग नहीं करनगे। तो अपने को जो साइन आऊगा वो नॉट बिलोंग्स टू द आऊगा। नैक्सट देखते हैं एक्स इज़ अ ट्राइंगल इन अ प्लेन, एक्स इज़ अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन। जोड़ा एक्स अपने को ट्राइंगल इन अ प्लेन आ। ठीक है। एंड एक्स इज़ अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन। देखो ध्यान अपने को ट्राइंगल आ। देखो अपने को इस साइड के उपर है ट्राइंगल। हम ट्राइंगल जी कोई भी हो सकती है। अपने को आइसोसेलेस ट्राइंगल हो सकती है, स्केलन हो सकती है। ठीक है। उस तो बाद अपने को राइट एंगल ट्राइंगल हो सकती है। बट इस साइड के उपर अपन उन्होंने दिता होया कि जो दूसरा अपने को सैट आ वो की है रेक्टेंगल आ। हम तुसी देखो कि एस जो अपने को 2 सैट हो गए। फर्स्ट सैट के अपने को सारिया ट्राइंगल्स आ एंड ये अपने को सारे के सारे रेक्टेंगल्स आ। हुण की जड़ियाँ अपने को ट्राइंगल आ वो अपने को रेक्टेंगल के पॉसीबल आ कि रेक्टेंगल वाले सैट के ट्राइंगल्स होण नहीं, क्योंकि ये अपने को सारे जिन्ने भी अपने को होणगे सारे के सारे रेक्टेंगल ही होणगे। ठीक है। वड्डे हो सकते, छोटे हो सकते, बट होणगे रेक्टेंगल। उवें ही अपने को इस साइड के उपर ट्राइंगल्स ही होणगियां। हो सकता वो अपने को इक्विलेटरल हो जाण, हो सकता स्केलन हो सकता आइसोसेलेस हो जाण, हो सकता अपने को 90 डिग्री एक 90 डिग्री ट्राइंगल्स हो जाण अपने को। बट जिहड़ी चीज़ मेन आ वो ये आ कि दोनों ट्राइंगल्स दे विच अपने को दोनों साइड्स के उपर जिहड़ी अपने को इत्थे ट्राइंगल बनी हुई आ
ਉਹ ਟਰਾਇੰਗਲ ਔਰ ਸੌਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਟਰਾਇੰਗਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਕਟੈਂਗਲਸ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਆਊਗਾ ਉਹ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਨੋਟ ਆ ਸਬਸੈਟ ਦਾ ਆਊਗਾ ਇੱਥੇ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ x ਇਜ਼ ਅ ਇਕੁਏਲੇਟਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ x ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਕੁਏਲੇਟਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆ। ਜੇ ਇਕੁਏਲੇਟਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਇਹਦੀਆਂ ਇਕੁਅਲ ਆ ਦੈਨ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਬਣਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਬਟ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਐਂਡ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਇਨ ਅ ਸੇਮ ਪਲੇਨ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਆ। ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੁਏਲੇਟਰ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਕੇਲਨ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਈਸੋਸੇਲਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੋਵੇ, ਐਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੋ ਜੇ, 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣ ਜੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਈਸੋਸੇਲਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਦੋ ਸਾਈਡਸ ਉਹਦੀਆਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਧਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਕੁਏਲੇਟਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਧਰ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੁਏਲੇਟਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਲੇਟਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਆ ਉਹ ਇੱਧਰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਸਬਸੈਟ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ x ਇਜ਼ ਐਨ ਈਵਨ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ। ਈਵਨ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੈਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਸਟਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਈਵਨ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ, ਈਵਨ ਵੀ ਆ ਐਂਡ ਨੈਚੁਰਲ ਵੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, 1 2 3 4 5 6 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ, ਠੀਕ ਆ, ਅੱਗੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 2 ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੈਟ A ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, 2 4 ਐਂਡ 6 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸੈੱਟ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ B ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ B ਲੈਟ ਕਰ ਲੈਨੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ। x ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਟੀਜਰ। x ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਇੰਟੀਜਰ ਆ। ਜੇ x ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੰਟੀਜਰ ਆ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇੰਟੀਜਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। -4 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ਐਂਡ 5 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ, ਦੋਨੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਵੈਲਿਊ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ B ਸੈੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ B ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੈੱਟ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਐਂਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਬਟ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ A ਸੈੱਟ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਜਿਵੇਂ 2 ਆ 4 ਆ ਐਂਡ 6 ਆ, ਕਿ ਉਹ B ਸੈੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ। B ਸੈੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ A ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਸਬਸੈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ B ਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਬਸੈਟ ਆਫ B, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸਬਸੈਟ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆਊਗਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਵੈਦਰ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਟਰੂ ਐਂਡ ਫਾਲਸ। ਟਰੂ ਐਂਡ ਫਾਲਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਸਬਸੈਟ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ, ਉਸ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਬਸੈਟ ਦਾ ਸਾਈਨ ਕਰੈਕਟ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਬਸੈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਆ ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਆ A ਐਂਡ B। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A ਐਂਡ B ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ A ਐਂਡ B ਦੋਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੈੱਟ A ਐਂਡ B ਆ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਬਸੈਟ ਆਫ BCA। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਬਸੈਟ ਆ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਆ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਆ ਸਬਸੈਟ ਦਾ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਹੋਗੀ, ਫਾਲਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋਗੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ A ਐਂਡ E। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ x ਇਜ਼ ਅ ਵੋਵਲ ਇਨ ਅ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਲਫਾਬੈਟ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਰੋਸਟਡ ਫਾਰਮ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਸਟਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੋਵਲਸ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, A E I O ਐਂਡ U। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ A ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ ਐਂਡ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ A ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ E ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ ਐਂਡ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ E ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬਸੈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਂਡ ਸਾਈਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਬਸੈਟ ਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਟਰੂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋਗੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ 1 ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ 1 ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ ਐਂਡ 2 ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ, ਬਟ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 1 2 3 ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਆ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਸਬਸੈਟ ਆਫ 1 3 ਐਂਡ 5। 1 3 5 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੈੱਟ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇੱਥੇ 2 ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨੋਟ ਅ ਸਬਸੈਟ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ
सबसैट का पुट किया होया वा, तो इट मीनस कि जी मेरे को स्टेटमेंट है फिर की होगी फॉल्स स्टेटमेंट होगी। ठीक है, जी फोर्थ एंड फिफ्थ मेरे को स्टेटमेंट है, इन्होंने स्टेटमेंट थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहना मैं, ताकि थोड़ा जो कंसैप्ट आ वो थोड़ा बिल्डअप हो एंड तुहानूं ये कंसैप्ट बिल्कुल चंगी तरह समझ लग जाए कि असल दे विच इहदे है की आ। समझे, देखो मेरे को इत्थे दिता होया ए एंड ए बी एंड सी। देखो ध्यान नाल स्टेटमेंट नूं समझण दी कोशिश करो। मेरे को सिर्फ साइन का डिफरेंस आ, इत्थे जिहड़ा साइन पाया होया एंड जिहड़ा इस साइड के उपर साइन पाया होया सिर्फ उहदा डिफरेंस आ। एंड इन्हां दे विचों एक स्टेटमेंट मेरे को ट्रू एंड एक स्टेटमेंट मेरे को फॉल्स आ। उस स्टेटमेंट नूं आपां किवें आइडेंटिफाई करांगे? देखो इत्थे मेरे को दिता होया ए दे अराउंड ब्रेसिस पाईआं होईआं, ए दे अराउंड मेरे को इत्थे ब्रेसिस पाईआं होईआं। जेकर ए दे अराउंड ब्रेसिस पाईआं होईआं इट मीनस कि जिहड़ी मेरे को ए आ दिस इज़ अ सैट, ये मेरे को एक सैट आ। ठीक आ, सिमिलरली आप देख सकते हैं ए दे अराउंड इत्थे ब्रेसिस आ, जे ए दे अराउंड अपने को ब्रेसिस आ इट मीनस कि मेरे को की एक सैट आ। तो इतों अपने को एक चीज़ क्लीयर होगी कि मेरे को सैट आ, जे ए अराउंड ब्रेसिस ना पाईआं होंदियां सिंपल ए लिखिया होंदा तो इट मीनस मेरे को की सी फिर एक एलीमेंट सी। तो जे दे अराउंड ब्रेसिस पाईआं दैन इट इज़ अ सैट, इफ देयर इज़ अ नो ब्रेसिस अराउंड अल्फाबेट दैन इट इज़ अ एलीमेंट। हुण ध्यान नाल देखो इत्थे मेरे को जिहड़ा साइन पाया होया इस साइन का मतलब हुंदा वा सबसैट, इस साइन का मतलब हुंदा सबसैट। एंड जिहड़ा सबसैट का साइन आ हमेशा सैट वास्ते यूज़ किया जाता, वो कदे एलीमेंट वास्ते नहीं यूज़ किया जाता। तो जिहड़ा अपने कोले बिलोंग्स टू का साइन हुंदा वो हमेशा एलीमेंट वास्ते यूज़ किया जाता। हुण इत्थे ध्यान नाल देखो कि मेरे को इत्थे सैट आ एंड इत्थे सबसैट का साइन पाया होया तो इट मीनस कि मैं ये साइन इत्थे यूज़ कर सकदा क्योंकि जिहड़ा सबसैट का साइन वो सैट वास्ते यूज़ किया जाता। एंड इत्थे मेरे को ए प्रेजेंट भी आ, इट मीनस कि जिहड़ी मेरे को स्टेटमेंट है ट्रू होगी। एंड जिहड़ी मेरे को सैकेंड स्टेटमेंट आ ध्यान नाल देखो इत्थे मेरे को एलीमेंट नहीं, इत्थे मेरे को सैट प्रेजेंट आ। एंड जे मेरे को इत्थे सैट आ तो फिर मेरे साइन आ जिहड़ा वो बिलोंग्स टू का जिहड़ा साइन वो इत्थे यूज़ नहीं कर सकदा क्योंकि जिहड़ा बिलोंग्स टू का साइन हुंदा वो हमेशा यूज़ किया जाता एलीमेंट वास्ते। एंड जे एलीमेंट वास्ते यूज़ किया जाता साइन तो इसका मतलब आप साइन ही नहीं यूज़ कर सकते, इन्हूं चैक करने की भी लोड़ नहीं। एंड जिहड़ी स्टेटमेंट अपने को फिर की होगी ये फॉल्स स्टेटमेंट होगी। 6 देखो अपने को एक्स इज़ एन ईवन नैचुरल नंबर लैस दैन 6। हुण देखो इत्थे 3 कंडीशनस आ। पहली कंडीशन अपने को उन्होंने दिता ईवन, दूसरा उन्होंने दिता नैचुरल नंबर एंड 6 दिता उन्होंने लैस दैन 6। हुण नैचुरल नंबर आपां नूं पता नैचुरल नंबर 1 तो स्टार्ट होणगे एंड इनफिनिटी तक जाणगे। एंड ईवन नंबर दे विच आपां नूं पता ईवन नंबर दे विच जेकर आपां देखीए तो उहदे विचों ईवन नंबर फाइंड आउट कर लांगे। ईवन नंबर इह चों आ जो अपने कोले 2 4 एंड 6 एंड सो ऑन। उस तो बाद थर्ड कंडीशन दे विच उन्होंने कहा लैस दैन 6, लैस दैन 6 का मतलब सिर्फ 2 अपने कोले नंबर होणगे एंड अपने कोले 2 एंड 4 का एक सैट बन जाऊगा। सिमिलरली दूसरी स्टेटमेंट जेकर आप पढ़िए एक्स इज़ अ नैचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। एक्स अपने को एक नैचुरल नंबर आ जिहड़ा 36 नूं डिवाइड करदा। आपां इहदे वास्ते की करदे आ 36 दे सारे जिहड़े प्राइम फैक्टर आ फाइंड आउट कर लैंदे आ। 1 + 36 अपने कोले 36 हुंदा। उस तो बाद 2 + 18 अपने कोले 36 हुंदा। उस तो बाद 3 + 12 अपने कोले 36 हुंदा। उस तो बाद 4 + 9 अपने कोले 36 हुंदा। देखो जेकर आप इतों तक भी देखिए ध्यान दे नाल 6 × 6 भी हुंदा, बट इहदे विच भी आप देखिए तो अपने कोल जिहड़े 2 एंड 4 एलीमेंट प्रेजेंट आ। सेम अपने कोले पहले सैट विच भी 2 एंड 4 प्रेजेंट आ। जे पहले दे विच अपने कोले 2 एंड 4 प्रेजेंट आ, इहदे अंदर भी 2 एंड 4 प्रेजेंट आ। जदों आपां इहदा सैट बनावांगे तो उहदे अंदर अपने कोले 2 एंड 4 ऑलरेडी प्रेजेंट होणगे, बाकी भी एलीमेंट आपां लिख सकदे आ। तो इहदा मतलब की हो गया कि जिहड़ा 2 एंड 4 आ ये अपने कोले इट इज़ अ सैट ऑफ सबसैट ऑफ सैकेंड जिहड़ा अपने कोले सैट बन रहा वा। जिहड़ी अपने कोले सैट बिल्डर फॉर्म लिखी है तुसीं इहदी रोस्टेड फॉर्म दे विच कन्वर्ट करके इसनूं फाइंड आउट कर सकते हो। इस तो बाद अगे आपां देखते हैं, देखो ये जिहड़ी स्टेटमेंट आ अगला जिहड़ा सम अपने कोले आपां हुणे करके ही आए हैं एंड बहुत ही ज़्यादा सिंपल आ क्योंकि जे आपां पहिलां वाले जिन्ने सम उहनूं चंगी तरह अंडरस्टैंड कर लिया तो अपने वास्ते कुछ भी नहीं होना चाहिए। देखो अपने कोले इत्थे ए सैट दिता होया, ध्यान नाल देखो अपने कोले इत्थे ए सैट दिता होया एंड उहदे अंदर जिहड़े एलीमेंट प्रेजेंट होए कि मेरे कोले 1 2 एंड इत्थे ध्यान नाल देखो इत्थे मेरे कोले ब्रेसिस अंदर पाईआं होईआं वा। ठीक है, ब्रेसिस एज इट इज़ मन के चलना ये ब्रेसिस ही मेन चीज़ां वा। देखो इत्थे जिहड़ियां अपने कोले चीज़ ब्रेसिस पाई हुई ना मेन चीज़ आ। तो मैं इहनूं एक्स सेलेक्ट कर लेना, चलो तुहानूं थोड़ा अंडरस्टैंड ईजिली हो जाऊगा। मैं इहनूं एक्स सेलेक्ट कर लेना। देखो मेरे कोले बन गया 1 2 एंड जिहड़ी ब्रेसिस दे विच देखो इहदे मैं साइड ते लै देना। मेरे कोले इत्थे 3 एंड 4 लिखिया होया ना ब्रेसिस दे विच, इहनूं मैं लिख लेना एक्स। ध्यान नाल देखो इहनूं मैं की लिख लेना एक्स लिख लेना। ठीक है, हुण जिथे भी मेरे कोले ब्रेसिस दे अंदर 3 एंड 4 आऊगा उहनूं मैं एक्स लिखूंगा। ठीक है, एंड तुहानूं ईजिली अंडरस्टैंड हो जाऊगा कि आपां सम नूं किवें करना। हुण देखो जिहड़ा मेरे कोले ब्रेसिस दे अंदर 3 एंड 4 लिखिया होया वा इट बिलोंग्स टू ए, इन्हां ने कहा होया वा
ठीक है। देखो ध्यान नाल फर्स्ट स्टेटमेंट देखो 3 एंड 4, 3 एंड 4 आ जेड़ा मेरे कोले वो मेरे कोले की है एक सैट आ एंड वो बिलोंग करदा ए नूं। हुण ध्यान नाल देखो, ध्यान नाल देखो, जे मैं इहदी वैल्यू पुट करा, इहदी वैल्यू मेरे कोले की आ, ब्रेसिस दी वैल्यू एक्स आ, इट मीनस एक्स आ जिहड़ा वो बिलोंग करदा ए नूं। हुण तुसीं देखो एक्स दे अराउंड ब्रेसिस हैगियां, ठीक है। इहदे अंदर मेरे कोले डबल ब्रेसिस होणीਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ क्योंकि जिहड़ा मेरे कोले एलीमेंट आ ਉਹਦੇ अंदर ही इत्थे ब्रेसिस आ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ एक्स पुट कीता होया। ध्यान नाल स्टेट ਇਹ चीज़ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ करियो, जे नहीं समझ लगी ਤਾਂ कोई गल नहीं ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ कर लांगे, बट इन चीज़ ਨੂੰ समझਣ ਦੀ कोशिश करियो। देखो मैं ਇਹਨੂੰ पुट कीता एक्स, ਇਹਨੂੰ मैं पुट कीता एक्स। सिमिलरली मैं तुहानूं एक होर चीज़ ਦੱਸਦਾ, देखो मान लो मैं इत्थे ब्रेसिस आए पा देना, मान लो मैं आए पा देना, हुण देखो ਇਹਦਾ मतलब एक्स आ मेरे कोले अंदर वाले ਦਾ मतलब, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਏ आ जाऊगा। देखो आ मेरे को एलीमेंट आ, जे वन ब्रेसिस आएगा क्योंकि इतने ब्रेसिस ऑलरेडी अपने को, जे डबल ब्रेसिस पाऊंगा तो यदा मतलब तो एक्स हो जाऊगा, बट ये अराउंड होर ब्रेसिस आ, ये अपने को सैट होगा, आ अपने को एलीमेंट आ। तो हुण तुसीं देखो एक्स मेरे को एलीमेंट आ, जो मेरे को एलीमेंट आ मैं उत्थे सबसैट का साइन नहीं यूज़ कर सकता, मैनूं इत्थे बिलोंग्स टू का साइन यूज़ करना पैना, तो वो उत्थे है नहीं गा। तो यदा मतलब की है कि जी मेरे को फर्स्ट स्टेटमेंट आ वो इनकरैक्ट आ, वो मेरे को फॉल्स स्टेटमेंट आ, वो मेरे को सही स्टेटमेंट नहीं। थोनों ऐ लगूगा कि इत्थे 3 एंड 4 प्रेजेंट आ, बट 3 एंड 4 तो प्रेजेंट आ, बट फिर भी ये स्टेटमेंट अपने को फॉल्स आ। उसका रीजन की है कि 3 एंड 4 इन ब्रेसिस इज अ एलीमेंट, इट इज नॉट अ सेट। सो इफ इट इज नॉट अ सेट दैन वी कैन नॉट यूज अ सिंबल ऑफ अ सबसेट हेयर। तो जे अपने को इत्थे जिहड़ा सिंबल आ वो अपने को बिलोंग्स टू दा हुंदा, दैन अपने को स्टेटमेंट सही होनी सी। एंड सैकेंड स्टेटमेंट में तुसीं देख सकते हो अपने को बिलोंग टू दा साइन आ, इट मीनस कि जिहड़ी अपने को स्टेटमेंट है की होगी ट्रू स्टेटमेंट होगी। थर्ड स्टेटमेंट नूं ध्यान नाल देखो, थर्ड स्टेटमेंट दे विच मेरे को की आ दो ब्रेसिस पाईआं होईआं, दो ब्रेसिस पाईआं होईआं एंड उस तो बाद मेरे को साइन ए यूज़ किया गया। इत्थे मैं इहनूं एक्स पुट कर दूंगा एंड जे मैनूं एक्स पुट कर दूंगा तो मैनूं पता है सबसैट बन गया, सैट बन गया सॉरी। तो जे सैट बन गया फिर मैं साइन यूज़ कर सकता। तो हुण मैं देखूंगा एक्स मेरे को प्रेजेंट है, एक्स मेरे को प्रेजेंट है, इट मीनस कि मेरे को जी स्टेटमेंट की होगी फिर वो ट्रू स्टेटमेंट होगी। इत्थे मेरे को वन यूज़ किया गया वा, ठीक है। वन की मेरे को ए दे अंदर प्रेजेंट आ, वन मेरे को ए दे अंदर प्रेजेंट आ, ए मेरे को एक एलीमेंट आ, तो बिलोंग टू दा साइन यूज़ कर सकते हैं, इट मीनस स्टेटमेंट मेरे को की होगी ट्रू स्टेटमेंट होगी। इत्थे देखो मेरे को वन यूज़ किया गया, वन अपने को एक एलीमेंट आ, तो एलीमेंट वास्ते मैं सैट दा साइन यूज़ नहीं कर सकता, इसका मतलब मेरी जी स्टेटमेंट होगी वो फॉल्स स्टेटमेंट होगी। सिक्स्थ देखते हैं, सिक्स्थ दे विच देखो मेरे को 1 2 एंड 5 यूज़ किया गया एंड उन्होंने इत्थे अगे यूज़ किया गया सबसैट का साइन, तो 1 2 एंड 5। तो हम देखो मेरे को ए दे अंदर 1 2 एंड 5 है, देखो 1 2 एंड 5 प्रेजेंट है, इट मीनस कि मेरे को जी स्टेटमेंट होगी और ट्रू स्टेटमेंट होगी, ठीक है। और उस तो बाद देखो बिलोंग टू दा साइन यूज़ किया गया, बट मेरे को इत्थे प्रेजेंट की है, इत्थे मेरे को की है सैट आ, सैट दे नाल मैं बिलोंग टू दा साइन यूज़ नहीं कर सकता, मैनूं सबसैट का साइन यूज़ करना पैना सी, इसदा मतलब स्टेटमेंट मेरे को इनकरैक्ट होगी। अगली स्टेटमेंट देखो मेरे को 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 मेरे को की प्रेजेंट आ। देखो इनू देख के कन्फ्यूज ना होयो, तुहानूं ऐ लगूगा कि स्टेटमेंट सही है, बट इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। कदों देखो मैं इत्थे जिहड़ा 3 एंड 4 नूं एक्स पुट किया होया, हुण दोबारा चैक करो मेरे को 1 प्रेजेंट आ, हाँ स्टेटमेंट में 1 प्रेजेंट आ, मेरे को 2 प्रेजेंट आ, स्टेटमेंट में मेरे को 2 प्रेजेंट आ, स्टेटमेंट में मेरे को 3 प्रेजेंट आ, स्टेटमेंट में देखो इत्थे ध्यान नाल मेरे को किते भी 3 प्रेजेंट नहीं गा, किते भी 3 प्रेजेंट नहीं। इसका मतलब की हो गया कि जी मेरे को स्टेटमेंट हो की होगी इनकरैक्ट स्टेटमेंट होगी, ठीक है। इस चीज़ को देखो ध्यान दे नाल। हुण एक चीज़ इत्थों होर अंडरस्टैंड करो, देखो जिहड़ा मेरे को 5 हुंदा वा, जे मैं कल्ला 5 लिखदा तो उसदा मतलब हुंदा सैट, ठीक है। जे मैं कल्ला 5 लिखदा तो उसदा मतलब मेरे को सैट हुंदा वा। तो हुण देखो अगली 9th स्टेटमेंट देखो मेरे को उन्हें की दिता होया वा, जिहड़ा 5 आ वो कहंदे 5 आ जिहड़ा बिलोंग्स टू करदा वा ए नूं, तो 5 दा मेरे को सैट आ, सैट वास्ते जिहड़ा मैं साइन बिलोंग्स टू दा यूज़ ही नहीं कर सकदा क्योंकि सैट वास्ते तो साइन मैनूं सबसैट का यूज़ करना पैना। सैकेंड स्टेटमेंट में देखो ध्यान दे नाल मेरे को 5 आ जिहड़ा वो एक सैट आ एंड सैट वास्ते जिहड़ा मैं सिंबल यूज़ किया होया वा सबसैट का यूज़ किया, इसका मतलब मेरे को स्टेटमेंट ट्रू आ। हुण तुसीं कहोगे जिहड़ी 5 आ 5 का प्रेजेंट ही नहीं किते सबसैट किवें होगा, जिहड़ा 5 हुंदा मैं तुहानूं पहिलां पढ़ा के आया, इट इज़ अ नल, इट इज़ अ अपने को नल सैट हुंदा, इट इज़ अ वॉइड सैट, अपने को वॉइड सैट हुंदा, नल सैट हुंदा। तो जिहड़ा नल सैट हुंदा वो हर एक सैट च प्रेजेंट हुंदा, वो एवरी सैट के अंदर प्रेजेंट ही हुंदा वा, ठीक है। हमेशा अपने को करैक्ट ही होगी स्टेटमेंट। बट जिहड़ी अपने को 9th 11th स्टेटमेंट आ, ध्यान नाल देखो जिहड़ी मेरे को 11th स्टेटमेंट आ, इन्हां ने की कीता कि जिहड़ा मेरे को 5 आ उहदे अराउंड ब्रेसिस पा दियां, जे उहदे अराउंड ब्रेसिस पा दियां तो जिहड़ा मेरे को 5 आ वो एक एलीमेंट बन जांदा हुंदा, वो एक एलीमेंट बन जाता हुंदा क्योंकि जो अराउंड मैं ब्रेसिस पा देवां तो ये अंदर वाला एलीमेंट मेरे को की बन गया, फिर एक एलीमेंट बन गया। तो जे मेरे को एक एलीमेंट बन गया तो एलीमेंट आ जिहड़ा वो मेरे को अंदर प्रेजेंट नहीं गा, वो मेरे को ये किते भी तुहानूं 5 दिंदा नहीं प्रेजेंट गा,
इट मीनस कि जी मेरे को स्टेटमेंट होगी वो स्टेटमेंट की होगी इनकरैक्ट स्टेटमेंट होगी। ठीक है, तो ये ਜਿਹੜੇ ਸਮ ਸੀ ਆਪਾਂ एक्सरसाइज 1.3 ਦੇ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮ ਹੋਣਗੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਊਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲਓ। ਐਂਡ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਉਹ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ